Okay, so when we talk about the concept of stability or stability related concepts, the three magical letters which should strike your mind is RHI, that is resonance, hyperconjugation, and inductive effect. And these are actually the permanent effects which will be important when we compare the stability of any species. Also, there is one temporary effect which is associated with the unsaturated compounds. And that temporary effect which is only applicable in the presence of reagent is electromeric effect. So when we talk about the effects in organic chemistry, it's the RHI and the electromeric effect, out of which the important ones, because they are permanent, are RHI effects, and the temporary effect is electromeric effect, which is for unsaturated compounds in the presence of reagent. Now let's understand the effects one by one. So first of all, resonance. When we talk about resonance, I have given you a simple condition. कोई भी effect के लिए always remember the condition. So there were two important conditions which I had given. First, A double bond B, single bond C, C पे double, triple, plus, minus, lone pair or radical. So basically this represents a conjugation of a pi bond alternated with pi, a plus, minus, lone pair or a radical. So when we talk about the type of conjugation from this particular from this particular condition, there are mainly four types of conjugation which you should observe. The first one is pi, sigma, pi. That's A double bond B, single bond C pe double या triple. That will represent the conjugation of the type pi, sigma, pi. Second will be pi, sigma with a positive charge. Third will be pi, sigma with a negative charge. And this is equivalent to presence of a lone pair, and pi, sigma, a free radical. So if any of the structure follows this type of conjugation, it will definitely show the resonance. So resonance है या नहीं है, simply check करने के लिए the condition needs to be applied. Second, there is also a condition of resonance in which there is a positively charged atom sigma bonded with a negatively charged atom or a lone pair. Remember, negative charge या फिर a neutral atom with a lone pair is of similar condition. Negative charge हो या neutral atom पे lone pair, similar condition. So यहाँ पर जो conjugation दिखेगा, that will be plus sigma bond minus or a lone pair. This is the type of conjugation which we observe from the second condition. Now also remember that out of the two condition, अगर दो structures आपको दिया होगा, then the second condition का stability is more than the first condition. Matlab, let me give an example for this. If you have CH2 double bond CH, single bond CH2 plus, what is the name of this carbocation? Allyl carbocation. Allyl. Vinyl plus CH2, it is the allyl species having a positive charge. So this is allyl carbocation. What type of conjugation do you see over here? Pi alternate positive. Pi alternate positive या pi sigma positive charge. Now versus, let's say I have a structure of CH2 plus single bond OH with, of course, the oxygen has a lone pair. Does this species show resonance? No. It does. A पे positive charge, sigma, B पे lone pair. This is of the second condition, right?
कंडीशन खाली चेक करना है, फर्स्ट कंडीशन वैलिड नहीं है बट सेकंड है ना, ए पे प्लस अ पॉजिटिवली चार्ज गरीब एटम सिग्मा बॉन्डेड विद अ अमीर एटम, अमीर मतलब लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। तो इसमें भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस कैसा है, पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर का। ठीक है, तो अब आपसे पूछा कि ये दो स्ट्रक्चर में ए एंड बी में विच इज मोर स्टेबल, तो क्योंकि यहां पर ये लोन पेयर जो है पॉजिटिव चार्ज में डीलोकलाइज होकर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, द स्टेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ स्पीशीज विद द प्लस सिग्मा लोन पेयर कंडीशन is very high as compared to the first condition. The stability of B is greater than A. So पहले कंडीशन याद रखो, आउट ऑफ द टू कंडीशन अगर दो स्पीशीज आपको दिया होगा तो सेकेंड कंडीशन वाला स्टेबिलिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट कंडीशन स्टेबिलिटी। So this is what you need to know when you talk about resonance as a concept. Next, अगर resonance को वन लाइन में डिफाइन करना है तो it is defined as delocalization of pi electrons or lone pair. Delocalization of pi electrons या lone pair, मतलब whenever there is a movement of the pi electrons or the lone pair electrons, it definitely shows the resonance. And because of this delocalization, that is the movement, the energy of the species decreases. और जितना एनर्जी कम होता है उतना स्टेबिलिटी बढ़ता है. That is why resonance is a very, very important concept of stability. तो जब भी स्टेबिलिटी की बात आए, as I said, three magical letters you just speak, and that's RHI. जिसमें से R यानी रेजोनेंस का कंडीशन याद रखो, एंड कंडीशन के बाद टाइप्स ऑफ रेजोनेंस की बात करते हैं. So when I talk about types of resonance, I had classified this into three cases. टाइप्स ऑफ रेजोनेंस को तीन केसेस में हमने बाइफरकेट किया है. केस नंबर 1 इज प्लस आर इफेक्ट, दैट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. कंडीशन क्या है, जब कभी भी कोई अरोमेटिक सिस्टम हो, दैट इज बेंजीन, attached with any of the substituent which have the tendency to donate the electrons, मतलब कोई EDG टाइप का ग्रुप है. अब EDG होने के लिए आइदर ये वाले ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर लोन पेयर होना चाहिए. तो ऐसा कोई भी ग्रुप which has a negative charge or the lone pair electrons and it is in conjugation with the pi electrons of the benzene, it will show the plus R effect because मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक में देने वाला इफेक्ट इज पॉजिटिव, अच्छा इफेक्ट, और खींचने वाला विड्रॉइंग वाला इफेक्ट इज नेगेटिव इफेक्ट. वेरी सिंपल वे टू रिमेंबर, द वन हु डोनेट्स इज अ गुड इफेक्ट and one which withdraws is a bad or a negative effect. A simple way to remember this. Now, what happens when a substituent like EDG is attached to the benzene? तो जब यहां पर conjugation आप करोगे तो you will get a charge of negative at the ortho and the para position. Ortho and para positions only. यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैं हमेशा बोलता हूं कि रेजोनेंस मेटा पे कभी भी पॉसिबल नहीं होता है. मेटा पोजीशन नेवर एवर शोज द रेजोनेंट इफेक्ट. मेटा पे रेजोनेंस लिखना गुनाह है. ठीक है, तो जब यहां पर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखोगे तो यू विल गेट अ नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा, मतलब दो ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन. दिस इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर द प्लस आर इफेक्ट. ठीक है, और इसकी वजह से यहां पर कंक्लूजन क्या याद रखना है, प्लस आर इफेक्ट में द फर्स्ट कंक्लूजन इज द रिंग बिकम्स एक्टिवेटेड. रिंग बिकम्स एक्टिवेटेड एंड अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आया तो इट विल बी डायरेक्टेड टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, hence we call it as activating and OP directing. Activating and OP directing. उसके बाद एग्जांपल्स को भी मैंने आपको सिंपल वायरकिटी दिया हुआ है which is to be remembered as पापत, and that is also in the decreasing order. मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग वाला
plus R, you will observe in a phenoxide wherein you have a group as oxygen with a negative charge. ठीक है, उसके बाद aniline, then there is phenol, then there is anisole, and last में toluene. So that's how you remember the plus R effect. मतलब कंडीशन याद रख लो, कंक्लूजन याद रख लो, एग्जाम्पल याद रख लो. If you remember the three things, it's more than enough to crack the questions on the resonance. Then there is a negative resonance or a minus R effect. रेजोनेंस को हम मीजोमेरिक भी बोल सकते हैं, इसलिए माइनस एम इफेक्ट भी लिखा जा सकता है. अब माइनस आर के केस में द रिंग और द एरोमेटिक सिस्टम इज अटैच्ड विथ EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप कौन होता है? द वन विच हैज अ पॉजिटिव चार्ज. मतलब इट कैन हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और अ कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम कनेक्टेड विद द बेंजीन. तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनेगा. अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो ये रिंग को करता है डीएक्टिवेट, इसीलिए डीएक्टिवेटिंग. And because of that, it develops a positive charge again at the ortho and para position only. Because मेटा पे तो रेजोनेंस लिखना गुनाह है, मेटा पे रेजोनेंस होता ही नहीं है. ठीक है, तो डीएक्टिवेटिंग के साथ अब जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा, it can't attack at the ortho para, and that's why the only position which is available is the meta, and that's why we call it as meta directing, deactivating and meta directing. उसके बाद अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसको भी याद रखने के लिए आई गिवन यू NSCI का, NSCI का which represents nitro NO2, SO3H sulfonic acid, CN, acid ester, ketone and aldehyde. ICA is actually the family of carbonyl compounds. Acid ester, ketone, aldehyde. ठीक है, और ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग वाला माइनस आर इफेक्ट नाइट्रो में, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर साइनो, एंड देन द आइका फैमिली. दिस इज हाउ द ऑर्डर इज ऑल्सो टू बी रिमेंबर्ड. ठीक है, सो वंस अगेन कंडीशन, कंक्लूजन और एग्जाम्पल, दैट्स मोर देन इनफ फॉर द minus R effect or the negative M mesomeric effect to be remembered. So excuse, hello. Yes. So nucleophile attack makes it meta directing minus R effect. Na. नहीं, ऐसा नहीं. You can't have a nucleophile का attack on the benzene. What it undergoes is the ESR type reactions, which we call it as the Shan reactions. हाँ, शामिल. तो जब कभी भी शान रिएक्शंस का फंडा आता है, तब हम प्लस आर और माइनस आर के बेसिस पे कहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो डिसाइड करते हैं. So this is basically having the application in the Shan reaction. अब केस 3 जो है, that is called as the exceptional case. और ये एक्सेप्शन सिर्फ दो ग्रुप्स के लिए है. वन इज क्लोरीन. क्लोरीन और हैलोजन, एंड अदर इज नाइट्रोसो. नाइट्रोसो. Cl ग्रुप या N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसो ग्रुप होगा तो फिर एक्सेप्शन का केस आता है. ठीक है, इसमें भी जो रेजोनेंस होता है दैट इज सिमिलर टू द प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन है उसके ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, इसलिए जो चार्ज आएगा वो तो डेल्टा माइनस ही आएगा. मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा तो इट विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा ओनली. बट फर्क क्या है यहाँ पर, व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन, बिकॉज हैलोजन और नाइट्रोसो has a minus I effect also because of the high electronegativity, which actually dominates over the plus R effect. तो यहाँ पर जनरली RHI के हिसाब से we always say that R dominates H and H dominates I always. But यहाँ पर this is a case where the inductive dominates over the resonance due to high electronegativity, और इस exception की वजह से now the ring becomes deactivating, लेकिन the electrophile will attack at ortho and para position.
तो ओपी डायरेक्टिंग। तो यहां पर अगर मैं बाइफरकेट करूं तो डीएक्टिवेटिंग इज बिकॉज ऑफ विच इफेक्ट? इट्स डीएक्टिवेटिंग बिकॉज ऑफ minus I, and it is OP directing because of plus R. So that is the case 3 for the chloro or nitroso, or for any other halogen also the same effect will be applicable. So when you talk about resonance as a topic, you should remember condition, कंडीशन के बाद टाइप ऑफ रेजोनेंस, मतलब ये आपका सिनॉप्सिस हो गया कि इतना आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज द बेयर मिनिमम डेटा यू नीड टू रिमेंबर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इसके इफेक्ट्स के ऊपर जाएंगे, एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में अगेन फर्स्ट थिंग इज टू रिमेंबर कंडीशन, एंड द सिंपल कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन वाज CsP3 and CsP2. CsP3 sigma bonded with CsP2. Matlab there are two carbons connected by a single bond. One is sp3, other is sp2. In such cases, the hyperconjugation will always be possible. Then hyperconjugation mein the stability is compared by the number of. Gayatri, annotations band karo please. Yeah, stability in hyperconjugation is directly dependent on number of alpha hyperconjugating structures, HC यानी hyperconjugation structures, and that is in turn related with the number of alpha H. अब अल्फा H कौन से हाइड्रोजन्स होते हैं? Connected to sp2. The alpha carbon. and which is the alpha carbon? sp3 या sp2? sp3. sp3. So remember with the condition CsP3 sigma CsP2, CsP3 वाला carbon is alpha, उसमें जितने भी H है they are alpha H, more the alpha H, more is the stability. The end, that's it. ये है हाइपर कॉन्जुगेशन जो आपको याद रखना है। तीसरा, हाइपर कॉन्जुगेशन इज यूज्ड टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ applications में you can compare the stability of intermediate carbocation which has the same order for a carbon, free radical and alkenes. तो कभी भी कार्बोकटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और अल्कीन्स के रिलेटेड स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी वन ऑफ द इफेक्ट। ऑफ कोर्स पहले तो रेजोनेंस चेक करोगे, रेजोनेंस से नहीं होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी नहीं होगा तो इंडक्टिव। दैट्स व्हाट इज द आरएचआई ऑर्डर टू बी फॉलोड, ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन एज एन इफेक्ट, just these 3 points are more than enough for you to crack the questions. Then comes inductive effect. Once again, inductive में condition was simple. Whenever there is a Electronegativity. difference in electronegativity, whenever two atoms differ in their electronegativity, you have the inductive effect possible. Electronegativity. ठीक है। Simple example, if there are two atoms separated by a single bond and if B is more electronegative than A, फंडा क्या है? B will attract the shared electron pair towards itself, due to which B will acquire a partial negative charge, A will acquire a partial positive charge. Electron density around B will increase and around A will decrease, and this covalent bond is said to become polar. ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ पॉइंट्स बताया था, that it's a permanent effect and the polarization is temporary Partial. नहीं, पार्शियल। इफेक्ट परमानेंट है, इफेक्ट परमानेंट है,
बट पोलराइजेशन पार्शियल है। मतलब डेल्टा वाला पोलराइजेशन को पार्शियल बोलते हैं ना, अगर डेल्टा ना हो तो कंप्लीट पोलराइजेशन बोलेंगे, जो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आता है। सो इट्स अ परमानेंट इफेक्ट बट partial polarization. And if I have a chain of carbon atoms which is let's say attached to a highly electronegative element like chlorine, तो यहां पर इंडक्टिव मतलब वो रजनीकांत वाला एग्जांपल कि टग ऑफ वॉर हो रहा है, एक तरफ रजनीकांत है और बाकी जगह बॉलीवुड एक्टर्स। ऑफ कोर्स as per the memes, Rajnikant is going to win because he has very high power as compared to others. तो यहाँ पर इसका भी फंडा यही है कि इसके ऊपर जो डेल्टा नेगेटिव है that will be dominant as compared to the delta plus developed on the chain of carbon atom. And as we progress with the chain of carbon atom, the intensity of the positive charge will decrease, और generally ये effect जो है that is visible till a chain of carbon atom. 4 कार्बन के बाद एज गुड एज वो मर जाता है, इफेक्ट विजिबल नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरा, व्हेन यू हैव द टू एटम्स ए एंड बी, तो बी जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ए के नजरिए से देखोगे तो ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वापस जैसे मैंने बोला कि ऑर्गेनिक में जो भी डोनेटिंग होता है वो प्लस इफेक्ट होता है, तो इसको बोल दिया पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसको बोल देंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव में आने वाले एग्जांपल्स को भी याद रखने के लिए दिया था मा, दैट इज मेटल्स, अनआयंस, अल्काइल ग्रुप्स, मेटल, अनआयन, अल्काइल ग्रुप्स। सो कॉन्सेप्ट सिंपल है, मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, अनाइंस इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉन देंगे, अल्काइल ग्रुप्स कोई भी फंक्शनल ग्रुप को अटैच होगा तो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा। इसलिए कहीं पे भी अल्काइल ग्रुप अगर आता है एंड इफ आई आस्क व्हाट इफेक्ट डज इट शो, यू हैव टू रिमेंबर दैट इट शोज अ ई डी जी और द प्लस आई इफेक्ट। अब इसका ऑपोजिट ले लो, तो मेटल के सामने आया नॉन मेटल्स, अनाइन के सामने आया कटायन, अल्काइल के सामने आया फंक्शनल ग्रुप। सो मा याद रखने से डायरेक्टली माइनस आई के एग्जांपल्स भी यू कैन रिमेंबर इट इजीली। सो दिस इज द synopsis, the bare minimum synopsis which you should remember for the RHI effects. ठीक है, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, बट इतना अगर आपने समझ लिया, इतना याद रख लिया, आप क्वेश्चंस क्रैक कर पाओगे, इतनी गारंटी है। तो जिनको ऐसा लगता है कि हमें तो आरएचआई पता भी नहीं है, अगर आपने इतना भी समझ लिया आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, उतना गारंटी दे सकता हूं। Now let's move to the applications. So basically यहां पर मेन पॉइंट है कि आरएचआई को अप्लाई करके क्वेश्चंस क्रैक कैसे करना है। तो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज अरोमेटिसिटी। So aromaticity में we identify whether the given species is aromatic or not. उसके लिए we follow a rule called Huckle's rule. Huckle's rule. Huckle rule 3 pointer rule है। पहला, you have to check planarity, मतलब all the atoms must be planar। तो बेसिकली उसके लिए sp2 hybridized, sp2 hybridization को आपको रिलेट करना है। प्लेनारिटी के बाद it must have the delocalization, must have delocalization of electrons, and the total number of electrons must follow 4n plus 2 electron rule, जहां पे n can start from 0, so the number of electrons can follow as 2, 6, 10, 14, 18 and so on. So if any of the species is planar, has a delocalization or the movement of electrons via resonance of course, and the total electrons is following the 4n plus 2, yani 2, 6, 10, 14, then it will be aromatic.
Now, the best way to understand aromaticity, I always start with the examples of cyclopentadiene. तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल का कटाइन ले लो, साइक्लोपेंटाडाइइन का न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले लो, साइक्लोपेंटाडाइइन का अनाइन ले लो, दैट इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल anion. The best way to understand aromaticity is start with this example. So now, comparing the first structure for the Huckel's rule, is the structure planar? Yes. Yes, because all carbons are sp2. Carbon with a positive charge, carbocation is sp2 and double bond तो sp2 होते ही है, ठीक है? तो यहाँ पर planarity satisfy हो रहा है. Is the delocalization possible? Yeah. Pi, sigma, pi, pi, sigma, plus, plus, sigma, pi, पूरे में delocalization है. This is how you have to relate the condition of resonance, है ना? And the total electrons which are delocalized are 1, 2, 3, and 4. So is it satisfying 4n plus 2? No. No. It is actually satisfying 4n का multiples. मतलब 4, 8, 12, 16. अगर इन multiples में होता है तो Anti-aromatic. ये होता है एंटी एरोमेटिक. और जो स्पीशीज एंटी एरोमेटिक होता है इट्स हाईली Unstable. अनस्टेबल. हाईली अनस्टेबल. ठीक है, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक का क्लासिक एग्जांपल. फिर सेकंड स्ट्रक्चर पे मूव करें तो इज द प्लेनारिटी रूल एप्लीकेबल? No. No, it's sp3. बिकॉज द टॉप कार्बन इज अ सिंगल बॉन्ड कार्बन sp3, यानी प्लेनारिटी रूल ही फेल हो गया. तो जब पहला ही रूल फेल हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं नॉन Non-aromatic. अरोमैटिक. ठीक है, दो रूल्स पास होके थर्ड फेल होता है तो एंटी एरोमेटिक, तीनों पास होता है तो ही वो अरोमेटिक होगा. दैट्स अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब थर्ड केस में इज दिस फॉलोइंग प्लेनारिटी? Yes. यस. अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ आई हैव अ कार्बन आयन एज CH3CH2 नेगेटिव विद अ लोन पेयर, इथाइल कार्बन आयन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आयन? sp2. sp3. sp3. sp3 वर्सेस अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 अलाइल का कार्बन आयन है, तो अब ये sp3. कार्बन आयन sp2 हो जाता है. What's the difference and why the hybridization is different? Resonance in the second condition. That's why Correct. So when, listen to this very very carefully because इसमें गड़बड़ होने के चांस है. जब lone pair on a carbon ion is localized, मतलब not involved in resonance, then it is sp3. But when the lone pair is involved in resonance, मतलब it is delocalized, then the hybridization is sp2. तो अब यहां पर मैं पूछूं आपको ये कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2. आप बोलना चाहिए sp2 बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इट इज delocalized. अब प्लेनारिटी का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, delocalization कंडीशन सेटिस्फाइड है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6. That follows the 4n plus 2 rule, and that is the reason it will be aromatic. तो हमने रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके aromaticity को रिलेट किया. That's a very first application of resonance to be understood and remembered. Also, among them, which will be most stable now? Aromatic. Aromatic. Second, Non-aromatic. and third will be least stable, anti-aromatic. तो हमने स्टेबिलिटी भी समझ लिया, अरोमेटिक, नॉन अरोमेटिक, एंटी अरोमेटिक भी समझ लिया. क्लियर? यस और नो? Yes, sir.
अब और कुछ क्लासिक एग्जांपल्स यहां पर जो आपको याद रखना है. So if I have a 7-membered ring with a positive charge and conjugated system inside, what is this? Tropylium ion. Tropylium ion. So this tropylium ion also satisfies the condition of resonance. It is planar, has a delocalization, and the total electrons are 6. So it will be aromatic. ठीक है. बाय द वे कहीं बार ये 4n+2 में जो n का वैल्यू है ना, ये भी पूछ लेते हैं. तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? अरे कोई एनोटेशन कर रहा है, प्लीज बंद करो. गायत्री, इज योर एनोटेशन ऑन? नहीं थी सर, आई वाज नॉट. जिसने इरेज किया है प्लीज बंद रखो. Okay, tropylium ion will have the 6 electrons which are delocalized. With 6 electrons, what is the value of n? 1. 1. तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. इट्स अ वेरी फुलिश क्वेश्चन बट इट माइट बी आस्क्ड. n का वैल्यू 1 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है. नेक्स्ट, what number of resonating structures are possible for tropylium? 7. 7. 7 resonating structures. And in fact, more the resonating structures, more is the stability. So that is also one way to compare the stability of different species. ठीक है. Propylium के अलावा if I talk about the aromatic compound benzene, फिर fused benzene में आता है naphthalene और fused benzene में आता है Anthracene. एंथ्रासिन. और एंथ्रासिन के बाद भी एक और है जो इसी का आइसोमर है, Phenanthrene. 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 अच्छा, इसके बारे में what you are supposed to remember in the sequence? 2, 3, 4, 5 Resonating 2, 3, 4. resonating structures. तो 2, 3, 4, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो एक यहाँ पर रिंग जो है ऊपर की तरफ है और यहाँ पर ऑल्टरनेट सिस्टम ऐसा है. ठीक है. सो आई एम नॉट राइटिंग द नेम. दिस इज बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन. बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, नेफ्थलीन के 3 हैं, फिर एंथ्रासीन के 4 हैं और फिनेंथ्रीन के 5 है. ठीक है. और बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो n की वैल्यू 1 होगी. यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स, n is 2. यहाँ पे n is 3 एंड यहाँ पे भी सेम रहेगा क्योंकि इसका आइसोमर ही है. So when I say the n का वैल्यू is 3, it's 4 3s are 12 plus 2, 14 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट. क्लियर? एंड under this Huckel's rule, one more important example to remember is cyclooctatetraene. थ्योरी के हिसाब से गलत आंसर क्या है? Aromatic. तो वो भी गलत ही है, बट थ्योरी अप्लाई करके गलत आंसर क्या मिलेगा? प्लेनार है, डीलोकलाइजेशन है और 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहे हैं. So it will be 4n का anti-aromatic. धोखा. 4n का रूल फॉलो करेगा ना. तो you थ्योरी said के हिसाब से मैं बोल रहा हूं. हाँ, अरे जब थियरी अप्लाई करेगा ना तो प्लेनार है, डीलोकलाइजेशन है और 4n फॉलो कर रहा है, मतलब आपको आंसर लगेगा एंटी एरोमेटिक है. तो ये गलत आंसर है क्योंकि इसका सही आंसर है नॉन एरोमेटिक. एंड व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक? बिकॉज इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो ये है ही नहीं. इट इज अ, डोंट रिकलेक्ट दिस एग्जांपल. कप शेप स्ट्रक्चर है इसका, ऐसा वाला. और ये टफ शेप की वजह से नॉन प्लेनार हो जाता है एंड नॉन प्लेनार की वजह से ये नॉन अरोमेटिक हो जाता है. मतलब cyclooctatetraene is a very important example to be remembered, which is as per the theory supposed to be anti-aromatic, but it is not anti-aromatic, it is non-aromatic because
The tub shape makes it non-planar, and non-planar makes it non-aromatic. Is this clear? So can you ठीक है? explain how you decide 4n plus 2 follow करता है कि 4n follow करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं जो डीलोकलाइज होने वाले हैं? टोटल 8 है। 4n+2 मतलब n को अगर 0 से सब्सटीट्यूट करना चालू करोगे तो 2, 6, 10, 14, 18, और 4n में n का वैल्यू 1 से शुरू होता है, तो 4 का मल्टीपल्स है, 4, 8, 12, 16, 4 का टेबल फॉलो करना है बस, तो वो डिसाइड हो जाएगा। तो जब साइक्लोऑक्टाटेट्राइन देख रहे हो तो 8 इलेक्ट्रॉन है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, एंड दैट इज व्हाई इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, बट ये एक्चुअली है एक एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन का रीजन है द टफ शेप मेक्स इट नॉन प्लेनर ड्यू टू विच इट इज नॉन अरोमेटिक। अंडरस्टूड? यस सर, वो 4s और 5s 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब वो नेम बता सकते हो वापस, कंपाउंड का नेम? बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और लास्ट का है फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन, ओके, वो सिनॉप्सिस में भी देख लोगे तो सब दिया हुआ है। ओके, अरोमेटिसिटी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अबाउट द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड में वी हैव वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ benzene like structure with a nitrogen atom called Pyridine. pyridine. Then we have similar structure but without the double bonds called Piperidine. pyridine. Then we have 5-membered ring with a nitrogen, Pyrrole. Pyrrole. which is called pyrrole. And we also have the aniline as the nitrogenous compound. ठीक है, अब इसमें एक बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए we will understand with the availability of lone pair. ठीक है, let me call this as structure number 1, 2, 3 and 4. So first structure pyridine में is the lone pair localized या delocalized? Localized. Localized मतलब अपनी जगह पे है, वो रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बिकॉज इस केस में जो रेजोनेंस हो रहा है दैट इज ऑफ पाई ऑल्टरनेट पाई ऑल्टरनेट पाई, मतलब द लोन पेयर ओवर हियर इज लोकलाइज्ड, अपनी जगह पर है। अगर लोकलाइज्ड है तो इसकी अवेलेबिलिटी इज गुड और बैड? Good. गुड। पिपरिडिन में Also good. Availability of. मतलब लोकलाइज्ड है, लोन पेयर इज लोकलाइज्ड क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। पाइरोल में Delocalized. पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है, मतलब यहां पर द लोन पेयर इज डेफिनेटली डी लोकलाइज्ड, इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन, एंड यहाँ पे Delocalized. भी डीलोकलाइज्ड है। तो चारों में सबसे बेटर बेसिस कौन होंगे? Pyridine and piperidine. पाइरिडिन एंड पिपरिडिन। अब उन दोनों में बेटर बेस, Pyridine. Pyridine. हाउ डू Piperidine. यू डिसाइड? डिफरेंस चेक करो। पाइरिडिन में यस नाइट्रोजन इज डबल बॉन्डेड sp2 एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड sp3, and we know that electronegativity of sp2 is nitrogen sp2 is more electronegative or less? Greater. greater. इसका मतलब यहाँ पर जो लोन पेयर है वो sp2 वाला नाइट्रोजन ज्यादा खींच के या ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगा,
बट sp3 वाला नाइट्रोजन लूजली होल्ड करेगा, एंड देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ में आउट ऑफ 1 and 2 piperidine will be most basic, then comes pyridine. उसके बाद नेक्स्ट दो में पाइरोल वर्सेस एनिलीन में दोनों में डीलोकलाइजेशन है, बट पाइरोल में द नाइट्रोजन इज पार्ट ऑफ द रिंग एंड एनिलीन में नाइट्रोजन इज आउटसाइड द रिंग। तो क्योंकि नाइट्रोजन बाहर है तो उसका देने का अवेलेबिलिटी या पावर बेटर होगा एज कंपेयर टू पाइरोल, and that's why aniline will be slightly better as compared to pyrrole. 2 1 4 3 will be the order. समझा? अब पाइरोल जैसे ही दो स्ट्रक्चर्स आपको और याद रखने हैं, जिसमें नाइट्रोजन की जगह इफ यू हैव ऑक्सीजन Furan. then it is furan, and oxygen की जगह if you have sulfur Thiophene. it is thiophene. That sums up all the important examples under aromaticity. Furan, thiophene. So between furan, thiophene, and pyrrole, which one will be a better base? Will it be on electronegativity का basis? Yes, it will be. तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर विल बी वेरी लेस, Yes. तो नाइट्रोजन्स आर बेटर बेस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन वाला कंपाउंड्स, इसलिए अमोनिया आई कैन से इज बेटर बेस देन वाटर ना, Yes, sir. बस वही कॉन्सेप्ट है। क्लियर? So that is the part of aromaticity which covers all the important concepts and the examples. Now, the another application of RHI is to compare the stability of carbocation, carbanion, and carbon free radicals. So, when I talk about carbocation, the simple YRKT which you are supposed to remember is Baba. AVA. So, carbocations में we have benzyl carbocation as a very stable carbocation, followed by allyl, then alkyl. And out of vinyl and aryl, which is more stable? Aryl. Aryl. So BAVA is the YRKT, but order में it is BA and then VA का उल्टा, यानी aryl थोड़ा सा better stable होगा vinyl से। Aryl Okay. is stable. Sorry, क्या बोल रहा है? तो कार्बोकेटाइन में वी हैव दिस पर्टिकुलर ऑर्डर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कल मैंने ये सारे ग्रुप्स के बारे में बात भी किया था। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशंस विच आर सपोज टू रिमेंबर। बेंजाइल से भी ऊपर देयर इज वन कार्बोकेटाइन विच इज वेरी वेरी स्टेबल, इनफैक्ट द बाप ऑफ कार्बोकेटाइन इन द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज Third butyl carbocation. ना, No, नो, Dancing resonance. डांसिंग रेजोनेंस का एग्जांपल Cyclopropyl. Yeah. ट्राई साइक्लोप्रोपाइल methyl carbocation, yani a carbon which is connected to 3 cyclopropyl groups is tricyclopropyl methyl carbocation. तो ये कार्बोकेटाइन आपको ऑप्शंस में दिखा, it is the most stable carbocation out of all the carbocations which you have in organic chemistry. So I call it as BAP of carbocations. ठीक है? इसके अलावा फिर आप बेंजाइल के रिलेशन में जा सकते हो। अच्छा, बेंजाइल से भी ऊपर और ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल के नीचे देयर इज वन कार्बोकेटाइन with more resonating structures, with good number of resonating structures, very high. कौन सा दिख रहा है? प्रोपाइलियम, यानी ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल के बाद प्रोपाइलियम, और ट्रोपाइलियम के बाद अपने सबसे कॉमन कार्बोकेटाइंस में आएगा बा
and then va का उल्टा. This is actually the modified and updated order which you should remember. ठीक है. और जनरली ये जो बा है उसके अंदर अगर सब टाइप्स की बात करें तो between tertiary, secondary, primary, the order of stability is tertiary more stable, and secondary, and then primary. अब this is valid only बेंजाइल का टर्शियरी, अलाइल का टर्शियरी और अल्काइल का टर्शियरी आया, तीनों का टर्शियरी आया तो फिर बेंजाइल ज्यादा स्टेबल होगा देन अलाइल, एंड अलाइल ज्यादा स्टेबल होगा अल्काइल से. ये मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज एक एक्सेप्शन जो मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, ओनली एक्सेप्शन क्या? Tertiary alkyl is more stable than primary benzyl. Tert butyl is more stable than primary benzyl. Very, very important to remember. Tert butyl का carbocation, tert butyl is more stable than a primary benzyl which is C6H5CH2 plus. तो यहाँ पर 9 अल्फा यानी हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट कर देता है एज कंपेयर टू द रेजोनेंस ऑफ पाई ऑल्टरनेट प्लस, पाई सिग्मा प्लस. ठीक है. दिस इज द ओनली एक्सेप्शन. यानी जब आप कार्बोकटाइन एज अ टॉपिक याद रखो तो आप अगर ये स्लाइड याद रख सकते हो तो बस हो गया. ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन very stable followed by tropylium, then the famous बावा का जो मैंने आपको वायरकिटी दिया है उसमें बा followed by AV. ठीक है. अब इसके साथ let's explore few more things. If I have a carbo, yes, 2 minutes previous slide. Done. so if I have the carbocation, let's say अपने common carbocations में मैं बात करता हूँ, that is benzyl carbocation. तो आप स्ट्रक्चर भी वापस देख लो. अलाइल कार्बोकटाइन, अल्काइल में लेट मी टेक इथाइल कार्बोकटाइन, देन फिनाइल या अराइल कार्बोकटाइन, विनाइल कार्बोकटाइन और HC ट्रिपल बॉन्ड C प्लस वाला कार्बोकटाइन. तो इसमें फर्स्ट 5 का ऑर्डर तो मुझे पता ही है. इफ आई वांट टू इंक्लूड द लास्ट वाला ट्रिपल बॉन्डेड कार्बोकटाइन देन it will be ranked as least stable. And what is the funda for the least stability of this? Triple bond is most electronegative. Highest S character. Yes, and positive charge loves to stay electropositive. on a less electronegative or electropositive element. A triple bond loves to stay, याद रखना ये statement, a positive charge loves to stay on a less electronegative atom and a negative charge loves to stay on a more electronegative atom. इसीलिए बेंजाइल का कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर अलाइल, अल्काइल, अराइल, विनाइल और सबसे लास्ट में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? इसके अलावा इफ आई हैव अ कार्बोकेटाइन व्हिच इज सिग्मा बॉन्डेड विद द OH, इज इट अ स्टेबल कार्बोकेटाइन? Yes. यस, बिकॉज यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद Resonance. लोन पेयर यानी रेजोनेंस है, और यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग का फंडा आता है. बैक बॉन्डिंग इससे काफी स्टेबल कर देता है. So can you explain back bonding a bit more? बैक बॉन्डिंग मतलब यहाँ पर जो लोन पेयर है दैट इज गेटिंग डीलोकलाइज्ड इनटू द पॉजिटिव चार्ज. सो व्हेन यू हैव अ वेकेंट p ऑर्बिटल और यहाँ पर द p ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन एटम, so when the filled wala p orbital donates its electron to the vacant orbital, it is actually the case of the example of the back bonding. बैक बॉन्डिंग और एक एग्जांपल में आप p ब्लॉक के ग्रुप 13 में देख सकते हो. वेरी फेमस एग्जांपल BF. BF3. BF3.
तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में जो टर्मिनल एटम्स है वो आपके फ्लोरीन एटम्स है। फ्लोरीन के पास तो 3 लोन पेयर्स है, ठीक है, तो उसके p ऑर्बिटल में फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन बोरॉन जो सेंट्रल एटम है वो तो गरीब है बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पर इसका लोन पेयर होने वाला है डीलोकलाइज इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, एंड दैट विल आल्सो बी द केस ऑफ एक्ट बॉन्डिंग। Sir, हाँ, so if there was no resonance, would we think about inductive effect after this? you would have thought about hyperconjugation, and if not hyperconjugation then inductive Okay. sequence वही follow होगा हमेशा। Okay. So can you So, repeat the statements of positive and negative charge? Sorry? Can you repeat the statements of positive and negative charge you said a few minutes ago? A positive charge loves to stay on a less electronegative atom, and a negative charge loves to stay on a more electronegative atom. so I have a doubt. If there's a question which there's back bonding in one option and in one option there's resonance, which back bonding will stabilize more or resonance? मैंने बताया ना, second वाला resonance condition will always dominate over the first वाला resonance condition. Okay, understood. हाँ, बैक बॉन्डिंग का जो डीलोकलाइजेशन है वो एक बहुत ज्यादा स्टेबल फैक्टर है एज कंपेयर टू द पाई ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन वाला एग्जांपल और कंडीशन। All right, thank you, sir. Okay, so this is about the carbocation which you are supposed to understand and remember. अब आते हैं कार्बनाइंस के ऊपर। अब कार्बनाइन में भी टाइप ऑफ कार्बनाइंस तो आपके यही रहेंगे जो बावा कार्बनाइंस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कार्बनाइन में इफ आई टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे स्टेबल कार्बनाइन कौन सा होगा? Benzyl. बेंजाइल, अगेन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वाई Resonance. रेजोनेंस। मतलब फिनाइल के ऊपर अगर CH2 नेगेटिव है मतलब ये होगा स्टेबल। फिर Allyl. अलाइन। अब जो चेंजेस होगा वो यहां से होना चालू होगा। Now, if I have ethyl carbanion, aryl carbanion, vinyl carbanion, and the acetylide carbanion, तो इन चारों में if I replace the plus by a minus, which will be the most stable? Acetylide, ethanol, And ethyl. the reason? Negative likes to stay on electronegative atom. So that's what is the application to be applied here. ठीक है, negative charge loves to stay with a more electronegative atom. उसके बाद now you have the comparison between phenyl and vinyl. Phenyl? इसमें how phenyl and vinyl, how do you compare? Phenyl, I think. I एक think ऑब्जर्वेशन, फिनाइल में it is व्हाट इज directly बाहरी? on the ring, हाँ, इट इज डायरेक्टली ऑन द रिंग, so it won't be in conjugation. That's why vinyl. वोंट बी इन, It won't be in conjugation with the ring. It's directly on the ring, so vinyl will be more stable. हाँ कॉन्जुगेशन में नहीं है, बट ये जो कार्बन है इसका पाई ऑल्टरनेट पाई की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। Hmm. तो इज दिस कार्बन हैविंग अ प्योर डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड? Partial double bond. और ये वाला जो डबल बॉन्ड है इज इट प्योर और पार्शियल? Pure. तो अगर ये प्योर डबल बॉन्ड है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 के हिसाब से ज्यादा होगा, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली Less. लेस होगा। अब नेगेटिव चार्ज लव्स टू स्टे ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये वाला जो कार्बन है दिस इज एक्चुअली अ प्योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
and being more electronegative, here the vinyl will come first and उसके बाद आएगा अराइल. एक्चुअली इसका उल्टा हो जाएगा ना, ऊपर जो लॉजिक है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए था, अब जो लॉजिक है वो नेगेटिव चार्ज के लिए हो गया. समझता है? एंड सबसे लीस्ट स्टेबल में आएगा अपना अल्काइल कार्बन आयन. ये ऑर्डर अगर आपने याद रख लिया तो कार्बन आयन के क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू क्रैक. अच्छा, इसमें भी अगर मेरे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आता है तो अमंग द कार्बन आयन्स द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज Primary, secondary, tertiary. primary more stable, then secondary, and then tertiary. So that's all about carbon ions. And about carbon free radical, you don't need to worry because carbocation का stability and carbon free radical का stability दोनों का order exactly same है, because दोनों की कहानी same है, दोनों गरीब species है, and that is why carbocation equal to carbon free radical stability. तो एक कार्बोकैटायन समझ लिया तो कार्बन फ्री रेडिकल भी समझ में आ जाता है. What it? Yes or no? Yes, sir. Now to compare acidic strength. RHI का एक और एप्लीकेशन है to compare the acidic and basic strength. तो acidic strength में अलग अलग orders की अगर बात करें तो the very first order is for general different family of compounds. And among the organic compound, the strongest acid is Carboxylate. carboxylic acid. So carboxylic acid is stronger than Benzoic acid. नहीं, different family बोल रहा हूँ. Phenol. Okay, Phenol. phenol. Phenol is more acidic than Water. water, and water is more Alcohol. acidic than alcohol. 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 This is the first simple acidic strength order which you are supposed to remember. मतलब जब different family की बात आए तो carboxylic acid ranks 1 followed by phenol, water and alcohol. By the way, acidic strength is directly dependent on Number of Stability of EWG. conjugate base. stability of conjugate base. And the conjugate base is the anion of the acid, and the anion ka stability is inversely related to magnitude of negative charge. तो जब कभी भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करो तो you just remember this simple relation that more the conjugate base stable, more is the acidic strength, and the conjugate base is the anion which is related with the magnitude of negative charge inverse. And एक और मैंने स्टेटमेंट बताया है कि EDG acid strength को, Decreases acidic strength. EWG and increases acidic strength. so the second thing is acidic strength will be directly proportional to EWG but inverse to the EDG. खत्म. ये दो सिंपल रिलेशन आप हमेशा याद रखो whenever you talk about the acidic strength related questions. ठीक है, अब चैप्टर के अंदर घुसते हैं. तो सबसे पहले आता है अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर में फिनॉल्स. अब जब फिनॉल्स की बात करें तो पहला रिलेशन है if I have the phenolic compounds which is substituted with a substituent like nitro, no substituent, and a substituent like methyl which is the cresol compound. तो इस केस में आपको फंडा लगाना है ये वाला. नाइट्रो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग EWG. WC. and methyl is a very good, EDG. and EWG क्या करता है? Withdraws electrons. Withdraws the electron, stabilizes the conjugate base, and that's why we'll make the acid strength Stronger. greater.
So this will be the order. उसके बाद फिनॉल के केस में if you have the substituents like nitro, तो लेट्स से आपके पास नाइट्रो ग्रुप है ऑर्थो, मेटा और पैरा पे, और आपको इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है. तो व्हाट वाज द लॉजिक एंड द कॉन्सेप्ट यूज्ड ओवर हियर? plus minus m and minus I. आर और आई का इफेक्ट आपको अप्लाई करना है. अब इसमें मैंने दो चीजें, दो स्टेटमेंट्स बोले हुए हैं. Resonance फर्स्ट, is distance independent and inductive effect is distance dependent. सुपर, रेजोनेंस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, रेजोनेंस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितना पास उतना स्ट्रॉन्ग, जितना दूर उतना वीक, जो विजिबल टिल 4 कार्बन का फंडा बताया था वो. एक और चीज, रेजोनेंस इज नेवर एवर पॉसिबल एट Meta position. मेटा पोजिशन. Now, keeping these two statements in mind, it's a very simple way to write R and I का concept. So nitro has plus R or minus R. माइनस माइनस NSCI का को बिलोंग करता है तो माइनस आर. तो माइनस आर ऑर्थो पे होगा, माइनस आर पैरा पे होगा, लेकिन माइनस आर मेटा पे लिखना गुनाह है, तो लिख के काटो तो याद रहेगा कि गलत है. और नाइट्रो शोज ईडीजी और ईडब्ल्यूजी इंडक्टिव की वजह से, EWG. and minus I will be possible at all the three positions. Yeah. That's it. तो ये हो गया आर और आई लिखने का सिंपल तरीका, सिंपल ट्रिक. अब आर एच आई के हिसाब से पहले किसको कंपेयर करोगे? आर. R. तो आर कौन सा वाला है? माइनस. माइनस मतलब ईडीजी की ईडब्ल्यूजी, WG मतलब एसिड स्ट्रेंथ. increases मेटा विल बी least लीस्ट. तो सबसे पहले मेटा को ठिकाने लगाना है, या तो वो पहले होगा या लास्ट में होगा. समझ में आया? Minus R at ortho and para will increase the acidic strength as compared with meta. Meta will be lesser acidic than ortho para. यानी मेटा का पोजीशन फिक्स हो गया. अब ऑर्थो पैरा में माइनस आर तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, सॉरी माइनस आर तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है. वी कांट कंपेयर थ्रू रेजोनेंस, वी हैव टू कंपेयर वाया माइनस आई. अब माइनस आई ऑर्थो पे नजदीक है, तो जितना पास उतना Better. स्ट्रॉन्ग, but एंड दैट इज वाई. H bonding ना in this. हाँ, थियोरेटिकली आना चाहिए ओपीएम, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है पीओएम. Hydrogen में bonding. था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. मतलब when you have a phenolic compound with a nitro at the ortho position, तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से H को निकालना मुश्किल हो जाता है, एंड ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से कम हो जाती है. दैट्स व्हाई द ऑर्डर इज POM. अब ये एक ही एक्सेप्शन नाइट्रोफिनॉल के केस में था, बाकी सब जगह आप जो R और I का इफेक्ट समझ के अप्लाई करते हो, यू विल गेट योर आंसर करेक्ट. अच्छा, इसमें मुझे अगर फिनॉल प्लेस करना है तो फिनॉल कहां पर आएगा? Last. लास्ट. बिकॉज माइनस आर और माइनस आई दोनों ही इफेक्ट एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाता है, यानी प्योर फिनॉल सबसे लेस एसिडिक होगा. Hence the answer to this is POM followed by phenol. अब आप और कोई भी एग्जांपल ले लो, you will be able to solve the questions on acidic strength of substituted phenols. ठीक है, तो फिनॉल के चैप्टर में एसिडिक स्ट्रेंथ का इतना डिटेलिंग आपको आना ही चाहिए. उसके बाद के चैप्टर अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड्स में जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आती है. और जब कभी भी बेंजोइक एसिड की मैं बात करूं, तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर माय इफेक्ट. माय इफेक्ट मींस माय नहीं Ortho याद आया? effect. यस, एंड दैट वाज आल्सो कॉल्ड Steric hindrance. Steric in. सर इफेक्ट बोलना रे. Oh yeah. माय इफेक्ट बोल रहा हूं मतलब सर इफेक्ट, वैसे समझा रहा हूं.
So ortho effect. So when you have the comparisons to be done for the benzoic acid substituted ones, always first thing is to remember the Sir effect. अब Sir effect क्या है, क्या concept है, भाड़ में गया. Conclusion क्या था Sir effect का? Deactivating or activating group on ortho position will increase acidic or basic strength. ना 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 ना, गलत बोला. Ortho will be strongest acid. हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बेसिक के लिए उल्टा था. वो सर नहीं सिर्फ इफेक्ट हो जाता है. और वो उल्टा है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर Least basic. लीस्ट बेसिक. So, but that's ठीक for है, 1 degree, right? 2 degree and 3 degree aniline will be most basic, na, if it is substituted at ortho. वो तो डिग्री चेंज हो गया ना बाबा. सिर्फ एनिलीन्स के लिए हम बात करते हैं. Okay, okay. सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स मतलब ऑर्थो पैरामेटा पे, नॉट ऑन द नाइट्रोजन. Okay, sir. कंफ्यूज्ड. Sorry. कीप इट सिंपल. ऑर्थो इफेक्ट के दो स्टेटमेंट्स हैं. कॉन्सेप्ट गया भाड़ में. स्टेटमेंट्स को याद रखो. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, whether the substituent is EDG or EWG, is strongest acid. And ortho substituted anilines are weakest base. खत्म. तो अगर मैं बेंजोइक एसिड के साथ लेट्स से मिथॉक्सी ग्रुप लगा दूं, तो उसका ऑर्थो, मेटा और पैरा का इफेक्ट्स आप लिखेंगे पहले. तो चलो, आई रिपीट विद द मिथॉक्सी ग्रुप. व्हाट टाइप ऑफ आर इफेक्ट डज मिथॉक्सी शो? Plus R. आपत है. बस वो लैंग्वेज याद रखना है. पापत का ग्रुप है. पापत मतलब प्लस आर. अब प्लस आर सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही लिखना है. मेटा पे लिख के काटो ताकि याद रहे. इस पे लिखना गुनाह है. अब मेथॉक्सी when attached to the benzene will show what inductive effect? Plus I. That's the blunder. Minus I. माइनस है. Minus क्योंकि ये मिथॉक्सी ग्रुप कनेक्ट करने वाला है कार्बन को. कार्बन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Oxygen. Oh, ऑक्सीजन okay. खींचने वाला ग्रुप है. तो मिथॉक्सी में प्लस आर है तो प्लस आई है, ऐसा नहीं है. प्लस आर है लेकिन इंडक्टिव का माइनस आई है, क्योंकि इंडक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करता है, नॉट द डीलोकलाइजेशन. सो दिस इज अ वेरी कॉमन ब्लंडर. प्लस आर के साथ माइनस आई माइनस आई माइनस आई. अब बिना दिमाग अप्लाई करे सबसे स्ट्रॉन्ग में कौन आएगा? ऑर्थो. ऑर्थो. खत्म. ये सबसे पहले डाल देना है. ऑप्शन में अगर एक ही ऑर्थो वाला एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा है, वही आंसर है. खत्म हो गया. आगे बढ़ो. और कुछ देखने की जरूरत नहीं है. दो ऑप्शन में ऑर्थो पहले है तो दिमाग लगाना है, वरना ऑर्थो इफेक्ट से आपका क्वेश्चन सॉल्व है. ठीक है. अब सिर्फ आपको मेटा पैरा कंपेयर करना है. अब उसमें भी पहले यू विल कंपेयर, पहले यू विल कंपेयर पैरा आर इफेक्ट. अब आर कौन सा? प्लस आर है. प्लस आर मतलब ईडीजी. ईडीजी एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा. मेटा विल बी मोर एसिडिक. स्ट्रॉन्गर देन पैरा. और प्योर बेंजोइक एसिड लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि माइनस आए तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाता ही है. तो बेंजोइक एसिड विदाउट एनी माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट विल बी लीस्ट. ओएमपी बेंजोइक एसिड. तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है. एक चीज खाली याद रखो कि ऑर्थो वाला बेंजोइक एसिड सबसे पहले आने वाला है. अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कुछ और क्लासिक एग्जांपल्स जो आपको याद रखना है. इफ आई हैव फॉर्मिक एसिड and benzyl with a COH and benzoic acid. Formic acid is strongest. Formic acid is the strongest acid among the aliphatic carboxylic acids, क्योंकि इसमें कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं है और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है दैट्स वेरी वेरी स्टेबल. तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. अब बेंजाइल वाला एसिड वर्सेस बेंजोइक एसिड, हाउ डू यू कंपेयर दिस? Benzoic acid minus R and plus R are like inside. It becomes EDG. करेक्ट.
अब So सुनो इसको ben ध्यान से। हाँ हाँ बोल। nahi, so benzoic is more than benzyl then. यस। सो फंडा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप शोज व्हाट इफेक्ट, प्लस आर की माइनस आर। माइनस माइनस तो अगर ये माइनस आर शो कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो फिनाइल के नजरिए से देखे तो फिनाइल क्या कर रहा है? खींच रहा है। नहीं रे बाबा, फिनाइल के नजरिए से डोनेट देखे कर रहा तो फिनाइल Donate. क्या कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो फिनाइल क्या कर रहा है? डोनेट कर Donate. डोनेट कर रहा है। अगेन वाई आर रेजोनेंस, यानी कैन आई से द फिनाइल हैज अ प्लस आर इफेक्ट? यस और नो? अब बेंजाइल विद COH में जो COH है दैट्स अटैच्ड टू द sp3 कार्बन, ये एज गुड एज अपना अल्काइल ग्रुप हो गया। बट अब ये जब फिनाइल से अटैच्ड है तो दिस फिनाइल शोज, माइनस क्योंकि ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है, तो sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस आई वाला ग्रुप हो गया। समझा? हेलो? यस So now tell me, a minus I substituted group versus a plus R substituted group, which will be more acidic? माइनस माइनस आई इसमें स्लाइट माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। अंशी, Yes, sir. यू टोल्ड रिवर्स राइट? So I said ki, yeah, I said benzyl will be less than benzoic acid. हाँ तो उल्टा है, Oh, बेंजाइल वाला एसिड ज्यादा एसिडिक है बेंजोइक से, oh, okay, क्योंकि sir. यहाँ पे फिनाइल का माइनस आई है और ये फिनाइल डायरेक्ट अटैच है, तो इसका प्लस आर हो गया ना, तो ये एज गुड एज ईडीजी इफेक्ट है और ये ईडब्ल्यूजी है। ईडीजी डिक्रीज करता है, ईडब्ल्यूजी इंक्रीज करता है। Okay, understood. So formic is more acidic than the benzyl wala acid and then the benzoic acid. Clear? यस सर। Next, if I have formic acid compared with acetic acid and then propionic acid, all aliphatic acids. So the funda is H, methyl and ethyl. As we move from H to ethyl, the It EDG gets, increases it weakens the acid. weakens the acids, formic, acetic and propionic. And if I have CF3 substituted with a COH, CCl3 with a COH, CBr3 with a COH, increases chloro, of course, CF3 as a group is a very, very strong EWG, and then CCl3, and then CBr3. Okay, so that way there are many examples which can be framed for the acidic strength. तो ये जितने मैंने एग्जांपल्स दिए, इट कवर्स ऑल द इंपॉर्टेंट comparisons for the acidic strength overall. Understood? यस सर। Now to compare the basic strength. अब बेसिक स्ट्रेंथ मतलब अमाइंस या फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के रिलेटेड, यानी अपना लास्ट चैप्टर जो ऑर्गेनिक का है उसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ का जो टॉपिक है दैट इज टू बी अंडरस्टूड। अब among the bases, nitrogenous bases, the BAP of bases, एक example which you need to remember. Yes, anyone? Rank 1 basic strength में guanidine. superb, guanidine. And what is the structure of guanidine? देखो याद रखने का तरीका, बीच में एक कार्बन, आजू बाजू NH2, आजू बाजू NH2, ऊपर है डबल बॉन्ड NH, दिस इज guanidine. बाप ऑफ बेसिस मतलब वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, guanidine. कार्बन बीच में, आजू बाजू NH2, ऊपर डबल बॉन्ड NH। तो यहां पर इसका रीजन क्या है
If you look at the two nitrogen atoms, they are in conjugation. Because of that, ये लोन पेयर delocalize करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस नाइट्रोजन इंक्रीज करेगा और ये ग्रुप जो है ये प्लस आर की तरह बिहेव करेगा. ओवरऑल ये सारे इफेक्ट्स को अगर आप रिलेट करोगे तो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन at the top is very high. Availability to donate the lone pair will be very high, and that's why it's a very, very, very strong base. तो ग्वानिडीन के बाद आता है अमीडीन. और अमीडीन और ग्वानिडीन में फर्क इतना ही है कि जो NH2 दो ग्रुप्स है उसकी जगह एक अल्काइल आ जाता है एंड बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है. इसमें भी फंडा यही है कि ये लोन पेयर डीलोकलाइज हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है. अब ये जो है वो प्लस आई इफेक्ट है. तो यहाँ प्लस आर है, यहाँ पे प्लस आई है और बेस का स्ट्रेंथ जो है दैट डिपेंड्स और डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द ईडीजी. ईडीजी इंक्रीज करता है और ईडब्ल्यूजी डिक्रीज करता है. ऑफ कोर्स एसिडिक स्ट्रेंथ से उल्टा है. तो बेस के स्ट्रेंथ में सबसे पहला ऑर्डर यू शुड रिमेंबर इज ग्वानिडीन is the BAP of bases and guanidine is more basic than amidine. ओके उसके बाद हम अमाइंस में एंटर करते हैं. अब अमाइंस में एक कॉन्सेप्ट था about two competing effects for comparing the base strength when the amines are dissolved in water. And the two competing effects were And inductive inductive effect and solvation. solvation effect. ठीक है. तो फंडा जो मैंने पूरा डिटेल में बताया वो सब तो आप रीड कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग में मैं सिंपल आपको ऑर्डर्स बता रहा हूं जो आपको ध्यान में रखना है. तो अमाइंस में वी हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट कंपीटिंग विथ इंडक्टिव इफेक्ट. अब उसमें व्हेन द आर यानी अल्काइल इज अ मिथाइल ग्रुप, देन which effect dominates over the other? 2 degree, then 1 degree, then 3 degree. But which effect dominates over the other? Solvation. मिथाइल एक नन्हा सा मिथाइल छोटा ग्रुप है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम होगा, लेकिन पानी में जाने के बाद उसका सॉल्वेट करने का इफेक्ट डोमिनेट करेगा. बस उतना ही फंडा था. ड्यू टू विच सेकेंडरी अमाइन तो हमेशा मोर बेसिक होता है, लेकिन आपका कॉम्पिटिशन होता है प्राइमरी और टर्शियरी में, जिसमें मिथाइल के केस में सॉल्वेशन जीत जाता है, मतलब डोमिनेट करता है और ऑर्डर होगा 2-1-3. सेकेंडरी मोर बेसिक देन प्राइमरी एंड टर्शियरी. बट फॉर ऑल द अदर ग्रुप्स अपार्ट फ्रॉम मिथाइल यानी इथाइल या फिर उसके अलावा, 2 ऑर्डर 3 इज 2-3-1. 2 3. एंड इसका रीजन है द इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर द सॉल्वेशन इफेक्ट. Okay, so these are the two very important straightforward orders which you are supposed to remember. Methyl substituted amines have 2-1-3. All the other aliphatic amines would have 2-3-1. Then there was a general order given that if you talk about aliphatic amines and compare with benzylamine, aromatic wala aniline, and the ammonia compound. एलिफेटिक अमाइंस इन तीनों से ज्यादा बेसिक रहता है. बेंजाइल अमाइन मतलब फिनाइल के ऊपर CH2NH2 एंड वर्सेस एनिलीन में डायरेक्ट NH2 बेंजीन पे. व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस टू स्ट्रक्चर्स विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर? So availability of lone pair in benzylamine is more because in benzylamine it is not in conjugation with the rest of the double bonds. परफेक्ट. सो यू से द नाइट्रोजन का लोन पेयर इज लोकलाइज्ड एंड यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इट इज delocalized. Delocalized. ऑफ कोर्स बेंजाइलामाइन ज्यादा बेसिक हो गया एनिलीन से, और एनिलीन और अमोनिया में इनफैक्ट एनिलीन जो है वो सबसे वीक बेस होगा. मैं इसको जनरली बोलता हूं सबसे घटिया बेस अगर आपको रिलेट करना है तो इट इज एनिलीन.
दिस इज द ऑर्डर एलिफेटिक अमाइंस, और उसके अंदर हम जनरलाइज करें तो 2 3 1 बोलेंगे, एक्सेप्ट व्हेन आर इज Methyl. बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने बता दिया आपको कि जनरली एलिफेटिक अमाइंस में ऑर्डर इज 2 3 1 एक्सेप्ट व्हेन द आर इज मिथाइल, जिसमें ऑर्डर बिकम्स 2 1 3. देन कम्स बेंजाइलामाइन फॉलोड बाय अमोनिया एंड द लीस्ट बेसिक इज एनिलीन. दिस इज द अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ का रिलेशन. अब इसमें और कुछ एग्जांपल्स अगर मैं दूं तो इफ आई हैव एनिलीन, तो प्रीवियस में देखिए, 1 second. If I have aniline, then methyl substituted secondary amine, ये methyl substituted है, and dimethyl substituted aniline. How would you compare the basic strength here? More basic as there is more plus R groups in dimethyl substituted. Correct. So the substituted groups are methyl, and methyl shows the plus R effect, sorry, plus I effect, and more the plus I, more is the ADG, more is the basic strength. That's why dimethyl more basic होगा, methyl substituted उससे कम, और सबसे least यहाँ पर aniline हो जाएगा. Am I clear on this? Yes, sir. यस सर प्रीवियस स्लाइड में देखिए, Hmm. ठीक, इसके अलावा एक और बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन जो मैंने अरोमेटिसिटी में कवर किया था, ऑफ पाइरिडीन, पिपरिडीन, पाइरोल एंड एनिलीन, वो भी एक ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हो. So once you club the effects and compare it to solve the questions of acidic and basic strength and all at one place, it will be easier for you to understand and crack the questions. Okay, so today's session I have covered the RHI followed by the applications of them and finally to compare the acid and basic strength. Okay? So I have a doubt. Cool. So suppose there's a benzyl, there's two benzyl carbocations. On one of the benzyl carbocations, on para position, there's a methoxy group. And on the other benzyl carbocation, on para position, there's a methyl group. Which one will be more stable? You apply the logic. So तेरा क्वेश्चन तू सोच. methoxy will be more stable. But sir, you said today that methoxy is minus I. So how will it? How ना is it? ना ना, सुन सुन सुन, मैंने क्या बोला, मिथॉक्सी के पास दो इफेक्ट्स है. पहला क्या लिखेगा? Plus I. प्लस आर Plus R. Plus R. कॉमा माइनस आई. और मिथाइल में क्या लिखेगा? Plus प्लस R. Plus आर I. माइनस आई. पहले क्या कंपेयर करेगा? So methyl is plus I, no? प्लस आर भी है ना पापत. हाँ. Plus R and plus I ना in methyl. हाँ सॉरी. Okay. पहले क्या कंपेयर करेगा? आर की आई. Resonance. हाँ, और रेजोनेंस मिथॉक्सी का ग्रेटर है कि मिथाइल का? अच्छा methoxy का. समझा? Yeah. तो माइनस आई कब कंपेयर करना है? जब आर से बात नहीं बने. तो दैट्स Okay. व्हाई आई ऑलवेज से फॉलो द ऑर्डर आर एच आई. आर से अगर आंसर ना आए तो ही एच सोच, एच से आंसर नहीं आए तो ही आई सोच. दिस विल Okay. मेक द एनालिसिस सिंपलर. Okay, so that's why this carbocation will be more stable than the methyl substituted benzyl. So and one more doubt is cyclopropene. And there's a free radical on the sp3 carbon. So why is this not aromatic? To apply the Huckel's rule, first of all, radical resonance में है, मतलब it is planar and delocalization possible. But how many electrons would be involved in delocalization? Two, just 2 pi electrons only. अरे 2 प्लस ये नहीं घूमेगा क्या? So that's free radical, no? तो रेडिकल डीलोकलाइज नहीं होता है क्या? ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे रेडिकल, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन So इधर जाता है. we need to count free radical also as electron.
फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, और अगर वो Okay. घूम रहा है तो डीलोकलाइजेशन में काउंट करना है। ये तो Okay. ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना, 3 ऑड okay, वाले fine. के लिए तो हकल्स रूल फॉलो नहीं होता है, इसीलिए ये Understood. नॉन एरोमेटिक होगा। Understood, sir. Thank you. ये Sir, हम्म doubt. I've sent you the question. the increasing order of basicity of the following compounds. So you are given 3 compounds जो nitrogenous है, double bond NH2, double bond के साथ NH and NHCH3. So how do you go about the basic strength over here? सबसे पहले type of amine यहाँ पर देखो. What type of amine is this? Primary. So primary. This Secondary. is not secondary. यही गड़बड़ है. This is an imine. Imine complex याद है? Stephen's reduction. Yeah, sir. 3 double bond NH है ये. और ये आप बोलोगे सेकेंडरी अमाइन. समझा? अब सेकेंडरी वर्सेस प्राइमरी में कौन ज्यादा बेटर? Secondary. सेकेंडरी, बिकॉज एनीवेज 213 या 231 में सेकेंडरी तो हमेशा ज्यादा बेसिक होता है, तो 3. फिर इन दोनों में द नाइट्रोजन इज हैविंग द लोन पेयर ऑन सिंगल बॉन्ड ओवर हियर, द नाइट्रोजन इज हैविंग द लोन पेयर ऑन डबल बॉन्ड. क्या फर्क आएगा इसमें? Don't know, sir. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या फर्क आएगा? Electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सी लॉजिक और कंपैरिजन सेम ही है, जैसे हमने पाइरोल का पाइरिडीन का कॉन्सेप्ट समझा था, इट्स द सेम थिंग व्हिच इज एप्लीकेबल हियर. Here the lone pair is on sp3 less electronegative, here the lone pair is on more electronegative. तो अवेलेबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी? First one. 3 1 2 should be the order of the basic strength. Okay, sir. Got it. Thank you. Yeah. Sir, Can you please send these PDFs? Yeah, I will share it. Thank you. Yes. सर कल का पीडीएफ भेज सकते हो क्या? आरआई बैच पे मतलब. हाँ, वो कल. पूरा पीडीएफ एक ही है, सिंगल है. Sure. I'll share it as we progress with the sessions. So I sent you a question, so can you look at it? It's from this Saturday's paper. It's about carbon oxygen का bond length they've हाँ, asked. So what is the concept for this? Question number ठीक है. 53. यस यस, चलो ये बॉन्ड लेंथ का ही पार्ट है, मैं ले लेता हूँ यहीं पे. सो व्हेन यू हैव acetic acid which is CH3C double bond O single bond OH versus H plus निकालने के बाद we have the acetate ion CH3C double bond O negative. अब to compare the bond length we always compare bond order, क्योंकि bond length की values हम compare नहीं कर सकते, but bond order compare करके we can get the relation to the bond length, because we know that bond length and bond order are Inversely proportional. inversely proportional to each other. ठीक है. अब एसिटेट में इफ आई से द बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इज X एंड सिंगल बॉन्ड इज Y, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ X एंड Y? Y will be greater than X. नहीं, Will be equal because they will be resonance. equal, because this what you observe is not the real structure. तो रियल स्ट्रक्चर ये अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया Okay. ना, इससे रेजोनेंस होगा, तो द लोन पेयर विल डीलोकलाइज, डबल विल चेंज टू सिंगल, सिंगल विल चेंज टू डबल, एंड इन दोनों को मिलाकर व्हेन वी राइट अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड अ रियल स्ट्रक्चर, जहां पे जो पाई बॉन्ड है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड इवन द नेगेटिव चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑक्सीजन एज -½ ईच. इसी को हम फ्रैक्शनल चार्ज बोलते हैं. तो जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड लेते हो तो आपको बॉन्ड ऑर्डर भी मिल जाता है, फ्रैक्शनल चार्ज भी मिल जाता है, और फिर बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन भी कर सकते हैं. अब सिंस द बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5 ईच, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 ईच है, इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ है वो भी तो इक्वल होगा.
That is why the answer to this will be x is equal to y. Now this is true for the acetate ion because हमने H plus को निकाल दिया था and we have the negative charge on the oxygen atom. But when you have the neutral compound acetic acid, अब इसमें आपसे पूछा गया था, let's say this is the bond length x, y and z. तो x, y, z को कंपेयर करना था. अब मिस्टेक ये हो सकता है कि ये जो डबल है ये डीलोकलाइज करके इक्वल बॉन्ड लेंथ देगा और ये सिंगल है तो ऑफ कोर्स इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा बिकॉज सिंगल बॉन्ड लेंथ इज मोर देन द डबल और अनसेचुरेटेड बॉन्ड लेंथ. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. द ऑक्सीजन हैव द लोन पेयर and the lone pair will delocalize because of pi alternate lone pair conjugation. Now when I draw the resonating structure, observe carefully. What will happen is, पहले सारे atoms को हम लिख देते हैं. अब delocalization होने के बाद this single will change to double, double will change to single. Because the oxygen gave the lone pair, it will acquire a Positive charge. Positive charge. and ये pi electron यहाँ delocalize हुआ तो it will acquire a Negative. negative charge. So this particular structure, which was neutral, has got converted into a charge structure. And generally, neutral versus charge में कौन ज्यादा stable होता है? Neutral. 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 मतलब इस resonating structure का contribution as compared to the charge structure is going to be Negligible. more. मतलब more for the first and negligible for the second. But ये जो resonating structures है, let me call it as structure 1 and 2. इनके बारे में क्या बोलोगे? Equal contribution. Equal मतलब they are equivalent resonating structure. इसको हम बोलते हैं equivalent RS. मतलब 50% contribution first का होगा, 50% contribution second का होगा. But in the previous example of acetic acid, I can say 90% neutral का होगा और 10% charged का होगा. अरे हाँ कि नहीं? Yeah, sir. ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जब आप इसका हाइब्रिड लिखोगे and when you compare the x and y, it is not going to be equal because इस पार्ट में there is a negative charge on oxygen and नीचे वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है. तो चार्ज के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर this double bond will be of higher character, मतलब ज्यादा unsaturation as compared to this particular single bond which is converted to double. And that is why x का bond length सबसे कम होगा, फिर y का, and of course z का तो ज्यादा है ही because of the single bond. Acetic acid में जो 3 bond lengths है उसमें because of the presence of this double bond and this single bond, generally theory भी क्या बोलता है, x y से छोटा होगा तो practically भी वही possible होता है. It's just that x and y का difference will be minimized because of the resonance character over here. ठीक है, but comparatively x will be still lesser than y because of the different resonating structure and less contribution of the charge species which we are getting here. समझ में आ गया ये? Yeah, sir. So mark it as an important question and remember this relation, acetic acid versus acetate ion का relation. I can use Bond 54 and 55 also. 50 54 and 55. I sent a picture. Okay. There is a question about RC double bond O X attacked by a nucleophile and undergoing the NSR reaction to give RC double bond O NU and X negative. So it will be fastest when X is. तो ये NSR fast होने के लिए X should be a very good. EWG. नहीं. Leaving group. Leaving बस. group. तो अब सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है?
I. Clear. IBCF। तो इसमें ऑप्शन में क्लोराइड दिया हुआ था और मैंने आपको एसिड डेरिवेटिव्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताया हुआ है, जिसमें असाइल क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव और अमाइड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो X जो है दैट इज इक्वल टू Cl, इन दैट केस द NSR विल बी फास्टेस्ट। तो So I सिंपल would, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। और याद रखो, अ गुड लिविंग ग्रुप इज अ, हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड लिविंग ग्रुप इज अ Good acid. Good acid, वीक, bad base. हाँ वीक बेस इक्विवेलेंट टू अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो so, सिर्फ एसिड का स्ट्रेंथ कंपेयर करो, यू विल गेट द आंसर। बोल। so then when to apply the concept that in nucleophilic substitution reaction, EWG will decrease the nucleophilicity and increase electrophilicity. You are So not it, comparing the nucleophilicity over here. You are getting confused between nucleophilicity versus the rate of nucleophilic substitution. hmm, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, और yeah, एनएसआर में रिएक्टिविटी मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं। तो okay, दोनों sir. का अप्रोच ही अलग है। Okay, sir. So, and can you ठीक है। explain 55 also? हाँ, बिफोर दैट एक और एग्जांपल, पर क्लोरिक एसिड की अगर बात करें, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट विल ब्रेक डाउन इनटू H प्लस एंड ClO4 माइनस। हाउ डू वी राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पर क्लोरिक एसिड? There'll be one over. OH, double bond, O, double bond, O, double bond, O, and हाँ, CI. it's an oxy acid where the chloro will be substituted with one OH and rest of the oxygen would be joined by double bond। अब H प्लस को जब निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा परक्लोरेट आयन। अब इस परक्लोरेट आयन में डू यू सी द रेजोनेंस? Yes. यस, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे? दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड देन और कितने आएंगे? 3 more. 3 मोर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे। ठीक है ना? बिकॉज ऑफ द 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द बॉन्ड ऑर्डर का एक सिंपल टेक्निक दिया था। सिग्मा तो हमेशा फिक्स रहेगा, तो इट विल बी 1 सिग्मा प्लस कितने पाए हैं 3. एंड कितने में डिवाइड हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? Oh. 4 पोजीशंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का एक सिंपल ट्रिक, इट इज 1 सिग्मा प्लस 3 पाई डिवाइड बाय द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स व्हिच इज 4, and this gives you the answer as 1 plus 3 by 4, 1.75। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का सिंपल ट्रिक। ठीक है। दूसरा, फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पे फिक्स नहीं है, लोकलाइज नहीं है, तो एक माइनस डिवाइड हो रहा है 4 पे, तो अमाउंट ऑफ द फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू -0.25। ये हो गया फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज। तो यही टॉपिक था, हाउ टू कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड द फ्रैक्शनल चार्ज। ठीक है। आसिम, आई विल रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप तेरा जो डाउट है। वाइंड अप नाउ। Yeah, okay, sir. So, and one last thing, if I can ask. So, nitrobenzene to aniline. So, how do you balance that reaction if it is getting reduced? बैलेंसिंग की जरूरत क्या है? इट इज जस्ट विद द SnHCl। No, so there was Because this. it, yeah, it Yeah, it came. came in the paper where we needed to find वी actually हैव डन दिस, 6 electrolysis. नेसेंट हाइड्रोजन के साथ वो बैलेंस होता है, RNH2 हाँ, plus 2H2O, so they दिस इज द asked बैलेंसिंग। They ask an pooling the electrochemistry charge. question on this, actually, based on Faraday's first law, something like that. इलेक्ट्रॉन का चेंज। They gave So 12.3 grams of nitrobenzene is reduced into aniline by electrolysis. If current efficiency is 25%, calculate the charge required in coulombs. हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करो ना, R तो फिक्स है। NO2 में इफ यू टेक N एज X,
एंड ऑक्सीजन का O2 विल बी -4 ना, Yeah. तो Yeah. So NO2 में जो N का चार्ज आ जाएगा दैट विल बी +4, और सामने जो NH2 है उसमें इसका -2 होगा तो इसका +2 होगा, तो हाउ मच इज द चेंज इन द 6 का ऑक्सीडेशन change. नंबर? 6 कैसे होगा रे? 2. Sorry. 2, Sorry. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, तो यही जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 फेराड है, क्रॉस The मल्टीप्लाई nitrogen कर, will be -2, right, in NH2. ओ सॉरी या सॉरी सॉरी, So then 6. हाँ 6 का चेंज होगा बस। अब एक बार ये मिल गया देन यू कैन सॉल्व इट थ्रू द यूनिटरी मेथड ना, Okay. समझा? इसी से ये 6 नेसेंट हाइड्रोजन का भी रिलेशन है ना, Understood, sir. Understood. यूनिटरी मेथड काम कर जाएगा। फाइन, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।